Navjot Sidhu has no interference in this and he doesn't know anything about it. मैं थोड़ा जा उन्होंने कांच पा के आई हाँ तो हंसन लगे कहते ड्रामे जी करती रहनी है सारा दिन सो कभी इधर तो पे नहीं कभी इधर ड्रामा कर रही है थोड़ी गल्लां फैक्ट्स वालियां ने नो डाउट मेडिकल नशा जो है वो जानना लईਆਂ ਘਰ ਦੇ ਘਰ जुड़े ਨੇ लेकिन जिवें ਤੁਸੀਂ ਫੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਏ ਨਸ਼ੇ ਚਲਾ नशा नहीं है कंट्रोल नशा है ही नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਡ ਕਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਬਿਊਪਰਨੋਫਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬਿਊਪਰਨੋਫਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡੋਜ਼ ਚ ਬਿਊਪਰਨੋਫਿਨ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਫਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ मैं उन्होंने जो काम देख के मैं किसी भी पार्टी तो सैटिस्फाइड नहीं हाँ मैं दिल्ली की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगी राघव चड्ढा मैनू लगता चंगा इंसान है पर वो अपने करे जो करना उन्हें मैनू नहीं पता की कर रहे अच्छा इंसान है उन्हें मुद्दे बहुत अच्छे उठाए ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿयंका ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿयंका ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਰ ਜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹੂੰਗੀ ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੂੰਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ मैंने नरेंद्र मोदी इसलिए चंगे लाते हैं मैं बड़ी क्लीयरली लिखा कि मैं अपने घर बैठी मैं अपने हस्पताल च बैठी मरीज देख रही सी जो मैंने ऑफर आया मैं एक एग्जाम्पल दी भी वो बंदा उस लेवल की उस चाया कि तू उठ चल कम कर पहली बार दी MLA ਨੂੰ CPS ਹੈਲਥ बनाया CPS ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਬ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ PM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BJP ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂ BJP ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂ तो थोड़े को टाइम नहीं है मेरी गल सुनने की तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਗਾ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ नहीं अभी मुझे नहीं पता मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की मेरी ये सारी जो मीटिंग्स हैं दिल्ली में हुई 2 महीने से हो रही हैं और यहाँ पे सिर्फ थोड़े से पंजाब के लोग इन्वॉल्व थे मेरे मोंटी भाई हैं ये इन्वॉल्व थे थोड़े से बंदे इन्वॉल्व थे मैनू नहीं आम आदमी च नहीं मैनू पहला तो जिवें केजरीवाल जी दे वल्लों मैसेज आए भी वो कर लै फिर जिवें भगवंत मान मैं ओपन है मैं ट्वीट ते कीता भी भगवंत मान जी तुसीं मेरे घर वाले दे आके पेरेंट्स क्या सी कि नहीं मैनू कोई जवाब नहीं आया सो ये वाले मैसेज लैने तो मैं बहुत साल पहले बंद करते लोगों के देखो वो न्यूज़ 18 वालों ने गलत न्यूज़ चलाई मैंने उसको क्लियर किया मैंने बिल्कुल नहीं कहा मैंने कहा था कि हमसे कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं मांगा आपने कहा था नवजोत सिद्धू क्या कर रहा है मैं क्या वो 15 लाख रुपए एक दिन के कमा रहा है वो छोड़ के क्यों आए मैं क्या फिर आपने पूछा कि वो क्यों नहीं ऐसे क्यों नहीं आके काम करता भी ऐसे आके क्यों काम करे तो हाँ तो यही था कि मतलब बात तो यही हो रही थी ना कि वो क्यों आए तो मैं क्या काम वो CM बन के कर सकता है बंदा क्योंकि हमारी 18 फाइलें कैप्टन अमरिंदर के साथ फंसी रही तो तुमने काम करके क्या करना है देखो मेरी बादल साहब के पास फंसी रही नहीं इनके लिए जरूरत नहीं है अब होगी जरूरत क्योंकि अब जो CM होगा उसके पास 1-2 डिपार्टमेंट के सिवाय होंगी नहीं
ਨਹੀਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਦੱਬ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ, ਆ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ है ना, फिर चंद्रशेखर जी तो कटाई, वो मेरे भाई समान है। ये लोग लीड करेंगे पार्टी, इतने कुर्सी सीएमडी उत्थे बैठी हूँ, असि सानू बैठने की लोड़ नहीं है। हाँ जी मैं फेस होंगी, पर असी कुर्सी थोड़ा मैं दसिया उत्ते रखांगे, असी कुर्सियां ते बैठ के नहीं करेंगे। मेरा कली बीवी की पार्टी है, मियाँ तो है ही नहीं। देखो जितने भी फोन आते हैं, मैं थोड़ा क्या जो भी मैं इतने मिली हाँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तो निकल गई सी, मैंने फायदा ही नहीं कि मैं लड़ा तो कोई मंत्री बन के बैठ जा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हाँ भी काम ही नहीं करन दिंदे ते बंदा अपना स्पिरिचुअल जर्नी करे ना। हुण मैं कैंसर तो रिवाइव हुई हाँ, मैं अपना आयुर्वेदा नूं, मैं वैटनरी हॉस्पिटल्स नूं प्रमोट करना चाहती हाँ। मैनू पता है कि सिद्धू परिवार सोच चुकिया सी भी एक सिद्धू फाउंडेशन बनाएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰੈਕ ਕਰ ਗਏ कि मैडम मेरी सीट उत्थों रिजर्व कर लो। एक एक सीट पिछे दो दो तीन तीन फोन आ चुके। बहुत चंगे लोग हैं जो पंजाब को प्यार करते हैं, हजे थोड़े वांगू उन्होंने लगता है हवा च गल हो रही है। बीजेपी सेटलमेंट हो नहीं पाई, किस तरह का ट्वीट सी मैं गई नहीं, मैंने कोई मिले ही नहीं, ना उन्होंने बुलाया ना मैं गई। मैं अज भी तारीफ करूंगी, जदों असीं पार्टी लवांगे असीं मोदी जी तो पैसे लैन जावांगे ना। मैं किसी को नहीं गई, मैं एक्सक्यूज मी मैनू सारे बुलाते हैं। मैं जदों टाइम ही नहीं मंगया किसी तो भी मैं मिलना है, टाइम दिखा दो ना जो मैं लिखा हो, एंड ये भी दिखा दो भी कितनी बार उन्होंने बुलाया हुआ, मैं नहीं गई, मैं जाना ही नहीं। मोदी तो पैसे कादे मंगने? हाँ जी मोदी तो पैसे लेके मैं कैसे सीएम बनाएंगे, ऐसे जावांगे मोदी जी से ता करते हैं पैसे तो, हाँ तो पैसे देंगे हो ना। ਅਸੀਂ ਵਿਨਰਸ ਆ, मैं इतने देखती हूँ, मैं नीचे जाती नहीं, क्योंकि ये लोगों की पार्टी है, लोगों लिए है। बहुत सारे लोग आएंगे जो पंजाब की सेवा करने जाते हैं, जो साड़ी विजन 117 सीटों तक जाऊगी, सारे लोग जुड़नगे, क्योंकि इतने कोई रिश्तेदारी नहीं हो रही, इतने कोई वो नहीं हो रहा भी तुसी उत्तों जेड़ा बंदा लड़ना चाहता है अपने हल्के चंगा है, ਉਹਨੂੰ कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो लड़े, ਉਹਨੂੰ कोई पैसा लाने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और मैं जो हुण दसता ना, इन्हां दे सारी टीम उत्थे ला देनी है, पहला भी इहनूं हराओ ना उदों देखांगे, बाद च हजे इन्हां नूं कुछ नहीं पता। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीआरपी ਤੇ ਨਾਲੇ बीजेपी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜੀ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹਵਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਸ ਪਟਾਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਗਾ, क्योंकि मैडम आपने कहा कि आपने कुछ पहले कहा था कि कुछ नेताओं के आप काले कारनामे उजागर करेंगे। 37 लोग हैं, 37 लोग हैं, अभी चलने तो दो, अभी कहानी आपको ही मिलेगी। और ये हिंदुस्तान की पार्टी है, मैं पंजाब की इंचार्ज हूँ। ये 2015 जून, ये हमारे पंजाब के हैं, हिंदुस्तान के तो बहुत हैं, ये हमारे पंजाब के बड़े बड़े लीडर हैं, और इनके कारनामे मुझे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से आए हैं, विद प्रूफ दूंगी कि इन्होंने बाहर जाके क्या कुछ खरीदा है, उन लोगों ने भेजे हैं वहाँ से, सारे आ गए, एक एक आ गया, पर वो टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे उठा के झूठे केस में जेल भेज देंगे। टाइम होता है ना हर चीज़ का, सब्र रखो।
आप ही के थ्रू, देखो आप ही के थ्रू रिलीज करूंगी, कईयों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी गलत है वो गलत है। मेरे अगेंस्ट भी कोई प्रूफ होए आप निकालो, आपको खुली छुट्टी है। 2004 से लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास उसकी फाइलें हैं, मैं आपको दूंगी ऐसी। मुझे बहुत कहा गया कि आपने, चन्नी जी ने कहा, सबने कहा कि आप ऐसा मत करिए, हम आपकी बात चला रहे हैं, हम बात करेंगे। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं बात करने की, क्योंकि जब मैं कह चुकी हूँ कि नहीं तो नहीं। देखो मैं भी इस बात पे पक्की हूँ, क्योंकि वो माहौल ठीक होने वाला नहीं है। जिस माहौल में आज कांग्रेस है, आप उसको ठीक कर दोगे क्या? क्या आप उस लेवल पे बड़े बड़े लीडरों को निकाल दोगे क्या जो कॉम्प्रोमाइज्ड है? और जो कॉम्प्रोमाइज ही रहेंगे, मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी। देखो कांग्रेस 5 तो 10 सीटां ते बैठी है, ਉੱਥੇ बैठूगी ਕੀ ਕਰਿਓ आप? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, क्यों आंदा जो ने कोई बिजनेस नहीं करनी। हुण अज उन्हें रोटी कमा खानी है कि नहीं खानी? एक बंदा रोटी कमा रहा है, एक बंदा काम कर रहा है ना। हुण वो मैनूं रोटी दिंदे तो मैं खानी है, वो मेरे घर चला रहा है तो मैं पॉलिटिक्स च बिजी हाँ। दोनों बंदे आ गए तो रोटी खिलान तुसीं आओगे या असीं गुरुद्वारे जावांगे? वो पॉलिटिक्स से दूर है। मुझे नहीं पता, तो वो मनोज जी है मेरी तरह। जैसे मेरे को पता था 2 महीने पहला कि मैं यहाँ आ रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अपॉर्चुनिटी की बात होती है, और मैं 10 बार 2 महीने इसी बात को क्लियर करने में लगाए कि मेरे लिए कोई इंटरफेरेंस होगी कि नहीं। नहीं, मैं उन्हां चों लोगां चों नहीं हाँ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਿਦ 7 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1.5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਈ ਮਿਲਿਆ